حضرت صوفی حسین علی شاہ قادری شتاری سرمدی سرمست قلندر رحمت اللہ علیہ کا تعلق ناگپور شہر مہاراشٹر سے ہے اور آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ شتاریہ کے مشہور و معروف بزرگ قطب الاقطاب قطب دکن حضرت سیدنا ہاشم پیر و دستگیر حسینی علوی قادری شتاری کی بارگاہ سے ہے۔ حضرت صوفی حسین علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ قادری شتاری کا 85 سال کا عرس منا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کرم ہے کہ آج آپ کی جتنی عمر تھی اتنا ہی عرس منا رہے ہیں۔ آپ کا 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور اس مقام پر آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں حضرت غریب نواز خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 دن تک مسلسل کشی کیے، جو اولیاء مسجد میں آپ کا قیام تھا۔ وہاں سے آپ کو دیدار ہوا اور حکم ہوا کہ تمہاری امانت قطب الاقطاب حضرت سید شاہ ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت کے سجادہ نشین حضرت قبل عالم حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کے کئی امتحانات آپ کے پیر و مرشد نے لیا۔ اس کے بعد آپ کو چننے کی تپتی ہوئی بھٹی پر بٹھا کر جامع توحید سے آراستہ جب آپ بیعت حاصل کیے تو اپنے سلسلے کے ہم نامی بزرگ جن کا مزار مبارک ناندورہ شریف میں ہے حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی صوفی سرمست قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہاں پر سلوک کی منزل آپ نے طے کی اور آج سے واقف ہوئے، اشکار سے واقف ہوئے اور کافی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی پوری تائید کی۔ اس کے بعد آپ کی خلافت سے سرفراز ہیں۔ آپ حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی علوی قادری شتاری سجادہ نشین درگاہ ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ بیجاپور کے مرید و خلیفہ ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر بال بچوں کے ساتھ کم سے کم 50 و 60 آدمی کا مجمع، جس میں ہمارے خود کے مرید وغیرہ رہتے ہیں، ہم یہاں پر آتے ہیں 40-50 آدمی پورے لے کر کے، اور سن 1976 سے ہم یہاں آ رہے ہیں، سن اس کی لگاتار آ رہے ہیں۔ آنے میں ہماری کوئی یہاں کمی نہیں ہوئی اور کبھی رکے نہیں۔ اور یہ عرس جو ہے تقریباً یہ 85واں عرس ہے، 85، اور ان کا خاص مقام صوفی صاحب کا جو ہے وطن یہ ناگپور مہاراشٹر کا ہے۔ ناگپور مہاراشٹر میں رہے، وہاں سے نکلے اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف سے حکم ہوا یہ وہاں سے بعد میں بیجاپور گئے، بیجاپور میں شاہ عبداللہ حسینی کے پاس میں رہے، وہاں سے انہوں نے حکم دیا یہ ناندورہ شریف گئے، اور ناندورہ شریف میں صوفی حسین علی شاہ کے پاس میں انہوں نے قلندری حاصل کی، اور وہاں سے یہ آئے اور پھر ان کو یہ حکم ہوا وہاں سے کہ آپ جاؤ گوداوری کنارے پر، تو آپ گوداوری کنارے پہ یہاں آ کے بس گئے۔ اس کو یہاں کی جنگل تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، آنے جانے والے کوئی آدمی نہیں تھے، اکیلے جنگل میں بیٹھے تھے۔ اور ان کے ساتھ میں جو قلندری حاصل کرنے کے لیے ہمارے ناگپور کے بابا تاج الدین اولیاء ان کے پیر بھائی ہیں، یہ بھی ناندورہ شریف قلندری حاصل کرنے گئے تھے، تو ان کو حکم ہوا تم ناگپور جاؤ، ان کو حکم ہوا تم گوداوری کنارے جاؤ، تو گوداوری کنارے یہاں آ کے بسے ہوئے، اور یہاں ہر ذات کا، ہر مذہب کا، ہر قوم کا آدمی یہاں آتا ہے۔ صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ولایت و روحانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ نے سخت ترین ریاضتیں کی اور مقام قلندری کو حاصل فرمایا۔
सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शद के हुक्म से ज़िले आदिलाबाद के निर्मल शहर तशरीफ़ लाए और दीन मोहम्मदी की इशाअत का काम बखूबी अंजाम दिया। आपके पीर तरीक़त बीजापुर में हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे थे शेख अब्दुल्ला हुसैन क़िबला। वहाँ से इजाज़त व खिलाफत के बाद सरकार सूफी साहब क़िबला निर्मल तशरीफ़ लाए। निर्मल के बाहर सूफी नगर में अपना मस्कन बनाया, जहाँ आज भी आपका मुकाम मर्ज खलाइक़ ख़ास व आम हैं। आपके मुरीदीन हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं, अतराफ़ अकनाफ में। आपके पहले सज्जादे हज़रत सूफ़ी अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मुझे बैत है। आज से तकरीबन 40 साल पहले मैं हज़रत क़िबला की खिदमत में हाज़िर हुआ, यहीं पर शरफ़ बैत से मुशर्रफ भी हुआ। आपके सज्जादे हज़रत सूफ़ी मोहम्मद ज़ाकिर इक़बाल पाशा रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद उनके सज्जादे इसी मुकाम के बारगाह के जानशीन और सज्जादे हज़रत सूफ़ी मोहम्मद खुसरो अहमद पाशा शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके विसाल के बाद मौजूदा जानशीन सज्जाद नशीन हज़रत सूफ़ी ज़ाकिर हुसैन ज़ीशान पाशा शुत्तारी दामद बरकातहुम इस मकाम के जानशीन हैं, सज्जादे हैं। ये मकाम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर एक के लिए मर्जा है, फैज़ का मुकाम है। हज़रत सूफ़ी शाह क़ादरी शुत्तारी सरमदी सरमस्त क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह का शुमार न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के जय्यद और बाकमाल बुज़ुर्गों में होता है। आपको दो तरीके की खिलाफत है। एक सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बीजापुर सज्जादा नशीन बारगाह हाशिम पीर दस्तगीर से भी है, और दूसरी खिलाफत हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन सूफ़ी सरमदी सरमस्त क़लंदर नांदुरा शरीफ से भी है। उसके बाद आपके पीर व मुर्शद के हुक्म पर आपने गांव-गांव गली गली तौहीद का डंका बजाते हुए लोगों के सामने अपने मिशन को रखा और वहाँ से लोगों को फैज़ जारी करते रहे। इसके बाद आप नागपुर पहुँचे। नागपुर में हज़रत ताजुल औलिया हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहयात दोनों की बातें हुई। तो उसके बाद आप सोहराए निर्मल के तरफ चल पड़े। ये वो मुकाम है, एक ज़माना था यहाँ पे बहुत बड़ा घना जंगल था। बाद असर के यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ आए। यहाँ पे बूढ़ बच्चा चीता वगैरह खेलते थे, जैसा कि अक्सर घरों में बिल्लियाँ खेलती हैं। आप यहाँ पर क़ियाम पज़ीर किए, उस वक्त आपका साथ देने में हज़रत खुतबे दौरान सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत के ख़ास खलीफा थे, उन्होंने इस ज़मीन पे आपको क़ायम किया और यहाँ पे आपका आखिरी मक़ाम बना। गुज़िश्ता 85 बरसों से आपकी दरगाह तालिबीन हक़ के लिए मशाल राह और आशिकीन व मुरीदीन व मुतक़िदीन के लिए मरकज़ है। हमारे अहमद पाशा का खलीफा हूँ, ज़ाकिर सरकार का मैं मुरीद अहमद पाशा का खलीफा। मैं 44 साल यहाँ मुरीद बन के हूँ, यहाँ खिदमत गुजार भी हूँ। यहाँ का 44 साल से हर साहिब के साथ में मैं दौरा करता हूँ। वनी राजूरा सुने, महाराष्ट्र वनी राजूरा, और इधर हमारे चंद्रापुर नागपुर सुने, और दूसरा करीमनगर जित्याला कोरटला सुने। बाबा मुरियाद लेके जो आता है मुरियाद को हासिल कर रहा है। मैं खुद मुरीद नहीं था, मुरियाद बन के मैं खुद यहाँ आया। एक छोड़ को मेरे को 4 घर मिले हुए। अल्लाह के फजल से मेरे को एक बेटा नहीं 7 बेटे मिले हुए, एक बेटी भी मिली है। आपके मुरीदीन व खुलफा हिंदुस्तान के हर गोशे में
बिलखुसूस रियासत आंध्र प्रदेश, पड़ोसी रियासतें महाराष्ट्र, कर्नाटक और दीगर में मौजूद हैं, जो कि उर्स शरीफ के मौके पर कसीर तादाद में हाजिर होते हैं। अब्दुल वाहिद साहब इब्राहिमपुर सजादा नशीन दरगाह वाहिद नगर मोहम्मद मारूफ अली उर्फ कमर हुसैन अली काजी शुक्र रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में हम वहाँ के जानशीन और सज्जादा है। और निर्मल कि मेरे पीर को यहाँ से खिलाफत है, तो मुस्लिम सरकार तालीम दी है मुझे। हमारी बारगाह में ऐसा मसला है कि मेरी सरकार को यहाँ से अब्दुल वाहिद साहब से खिलाफत है और कमरुद्दीन सरकार से और जो तालीम है और बहुत बड़ी मेहनत की है, यहाँ से मशक्क़त की है। ये उन्हीं के जूतों का सदका है। ये बारगाह में हम आया करते हैं हमेशा के लिए। हमको ज़्यादातर हमारे को दादा पीर से हमको ज़्यादातर मोहब्बत है, सूफी साहब से, अब्दुल वाहिद साहब कुबला से। मुझे इस खान का सूफी नगर से भी हमको ज़्यादा निस्बत और मोहब्बत का मसला है। जो रहते मेरे ज़्यादातर हैदराबाद में मेरे वलीदन रहते। आपने अवाम को आपसी मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दिया। सारे हिंदुस्तान से सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आपकी दरगाह पर हाजिर होकर फैज़ान सूफी से सरशार होते हैं। लोग बिला लिहाज मज़हब मिल्लत यहाँ से फैज़ पाते हैं। इस मुकाम से अपनी मुरादें भर लेते हैं, रुश्द व हिदायत भी हासिल करते हैं, इजाज़त व बैत भी हासिल करते हैं। सिलसिले शुत्तारे का फ़रोग़ आंध्र प्रदेश के इलाक़े में इस मुकाम से बहुत ज़्यादा है, जहाँ की शाखें अतराफ़ अकराफ़ में हैं। अनासागर, जोगीपेट, पेद्दापुर, जाकिर नगर, कोनापुर, गंगवार शरीफ, कोल्हापुर और महाराष्ट्र में भी कई मुकामात पर इनकी शाखें मौजूद हैं। हज़रत के खुलफा अतराफ़ अकनाफ़ में फैले हुए हैं, जिनके खलीफों के ज़रिए से ये सिलसिले का फ़रोग़ हो रहा है और लोग बिला लिहाज मज़हब मिल्लत रुजू हो रहे हैं। ये दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आ रहे हैं। सूफी सरमस कलंदर साहब का उससे 85वां उर्स से। अब यहाँ पर सभी लोग मज़हब के आते हैं, फैज़ हम होते हैं, जाते हैं। वालिद वालदा सब यहाँ के मुरीद है जी। तो हम बचपन से चाह रहे, मगर मुझे ऐसा ख्याल है 45 साल से अच्छा तमाम परेशानियाँ भी दूर हो रहे हैं। आती है परेशानी, लेकिन आपके नज़रें इनायत। हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह क़ादरी शुत्तारी सरमदी सरमस्त कलंदर का उर्स मुबारक कौमी एकजहती की जीती जागती मिसाल है। हर साल ज़िलहज्जा के 15 तारीख़ को हज़रत क़िबला का उर्स होता है, जहाँ पर हिंदुस्तान के अतराफ़ अकनाफ़ के रियासतों से लोग हाज़िर होते हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत। मुझे दीन और दुनिया की कई तरक्की मिली, कई मुरादें हासिल हुई। आज भी दीन और दुनिया की जो इज़्ज़त, जो शोहरत, जो मकाम मुझे हासिल हुआ है, इसी मकाम का फैज़ है, इनकी ग़ुलामी की निस्बत है, जो मुझे इतना बाफ़ैज़ बना दिया कि आज मेरे अतराफ़ बेशुमार लोग रुजू होते हैं। उर्स शरीफ की 3 रोज़ा तकारीब में संदल माली 15 ज़िलहज्जा को जुलूस की शक्ल में खानखाह सूफ़ी से दरगाह शरीफ बरामद हुआ और मज़ार मुबारक को संदल पेश किया गया। हम जब भी कुछ मांगते हैं हमारा काम अपने आप बन जाते हैं, कोई रुकते नहीं। हम पे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आई, जब भी हमने सूफी साहब का नाम लिया हमारी नैया पार हुआ। हमारे कई दुश्मन पैदा हुए, लेकिन वो दुश्मन अपने आप ऐसे हो गए कि वो खुद बदनाम हो गए। ये हमने देखा। कुछ एक वाक़या तो हर साल आप आते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम बाल बच्चों के साथ में आते हैं। पूरे घर के मकान के लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे हर मुरादें, हर ख्वाहिश पूरी होती है। इस दरबार से हम सब पर, हमारे तमाम लोगों पर बहुत फैज़ है। दूसरे दिन 16 ज़िलहज्जा की शाम चिरागा जलसे अज़मत औलिया अल्लाह, जिसमें उलमा व कराम अवाम को मुखातिब किए। बाद अज़ां जलसे महफिल ख़व्वाली का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर व मारूफ ख़व्वाल हज़रात ने ख़व्वालियाँ सुनाई। सूफ़ी हुसैन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का 85वां उर्स शरीफ है, जो खुलूस और मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। 4 स्टेट के मुतक़िदीन मुरीदीन यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर माक़ूल पर्दे का इंतज़ाम भी है ख़वातीन के लिए, और
ताम का इंतज़ाम भी है। दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो भी इस दर पर आते हैं और फैज़याब होकर अपने मकसदों को हासिल करते हैं। बड़े ही खुलूस और मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ वो अपनी मुरादों को पहुँचते हैं। तीसरे दिन 17 ज़िलहज्जा बाद फजर तिलावत कलाम पाक, हल्क़ा तरीक़त, महफ़िल समा और फ़ातिहा के बाद तमाम हाज़रीन में तबरुकात तक़सीम किए गए। मैं यहाँ से कम 20-25 साल से आ रहा हूँ और जैसे हमारे हज़रत ज़ाकिर इकबाल पाशा रहमतुल्लाह अलैह उनका मैं मुरीद हूँ और जो है सो मैं यहाँ 25-30 साल करीब से आ रहा हूँ और जो है सो यहाँ पे मजमा भी जो है सो हर साल बढ़ते जा रहा है और ये 80 को 5वां साल चल रहा है हज़रत सूफ़ी सरकार का। जैसे हर चीज़ का फ़ैज़ है हमको यहाँ पे और जो है सो यहाँ पे मुरीदों का भी बोलबाला रहता है ज़्यादा और जो है सो यहाँ पे कोई शफ़ाअत का भी जो है सो यहाँ पे होते रहता और जो है सो यहाँ पे हर चीज़ जो है सो अपने अपने मुरीदों को जो है सो अपने पीर के इसमें आ जाते हैं। मैं 30 साल से आ रहा हूँ। ये तमाम मरासिम हज़रत सूफ़ी ज़ीशान पाशा साहब सज्जादा नशीं दरगाह सूफ़ी नगर अपने दस्ते मुबारक से अंजाम दिए। सूफ़ी नगर అనగా మహా పెద్ద బుజుర్గ్ పెద్ద సిల్సిలా ఇది సూఫీ సమస్తి కలందర్ అంటే చాలా పెద్దది ఇంకా ఇది మనకు హిందూ ముస్లిం ఏమీ లేదు ఇక్కడ దేవుని బాట దేవుని మాట అని ఒకటి మాకు నమ్మినాం ఇక్కడ 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మా గురువు దగ్గరికి వస్తాం మా పిల్లలు కూడా మంచిగానే అయింది ఇక్కడ అప్పుడే జన్మించిండు అంతా మాకు ఇప్పటికైతే బాగానే ఉంది ఇక్కడికి మా నాన్న వాళ్ళు తాత వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము మాకు చాలా మంచిగా జరిగింది ఇక్కడ ప్రతిసారి ఇక్కడ మంచిగా జరుగుతుంది మేము కూడా ప్రతిసారి ఇలా ఉత్సవాల్లో इन 3 दिनों में तमाम ख़ास व आम ज़ायरीन के लिए लंगर ताम का इंतज़ाम दरगाह शरीफ की जानिब से किया गया। हर साल की तरह इस साल भी उर्स शरीफ शानदार पैमाने पर मनाया गया। सरकार के मुरीद हैं बहुत अच्छा यहाँ के मुरीदा में बहुत इन पे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है यहाँ की उम्मीद और बढ़ती जा रही है చిన్నలప్ప గారు ఈ సూఫీ గారి శిష్యుడు ఇక ఆడికి వెళ్ళి మన రోషనల్లప్ప గారు కాదులూరప్ప గారి శిష్యుడు ఆయనకు మేము శిష్యులం ఇక్కడ మేము ప్రతి సంవత్సరము 20 సంవత్సరాల నుంచి వస్తాం ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంకు సూఫీ సర్కార్ సూఫీ హుస్సేన్ షత్తారుల్ ఖాదీ సర్మల్ కలందరి గారి యొక్క ఇది 81 సంవత్సరం ఉర్స్ షరీఫ్ ఇక్కడ మేము ఇక్కడ 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం పాల్గొంటాము చాలా ఇక్కడ కుల మత భేదాలన్నీ ఉండే ఇక్కడ ప్రతి వ్యక్తికి సాంప్రదాయ హిందువులు ముస్లింలు